أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی اپنی محبت سے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی، ترجمہ اور تفسیر سنا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اب آگے سورہ بقرہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ آپ قرآن میں سنیں گے، پڑھا ہوگا، کچھ صورتوں کے شروع میں مدنی لکھا ہے، کچھ صورتوں کے شروع میں مکی لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب بعض نے یہ کہا کہ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان تمام صورتوں کو مکی کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جائے گا۔ اس سورہ بقرہ کا نام، جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے جو نام اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ اللہ نے جس کا جو نام رکھا ہمیں اس نام سے اسی صورت کو موسوم کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ لیکن اس صورت کے جو سورہ بقرہ نام دیا ہے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے، بعض نے بقرتن کا ترجمہ گائے کیا ہے، بعض نے بیل کہا ہے، تو اس بنی اسرائیل کے اس جانور کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، جو آپ آگے آ کر پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کو، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ اور قتل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کا چچا بڑا مالدار تھا، اس کے پاس بہت سارے چیزیں تھیں، اور اس مرنے والا جو اس کا چچا تھا اس کا وارث یہی ایک بھتیجا تھا۔ اب جب بھی یہ مرتا تو اس کی وراثت اس کو ملتی، لیکن اس نے وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کو پہلے سے ہی مار دیا تاکہ اپنی وراثت کیا کرے، حاصل کر لے۔ اور اس کے بعد جب اس کو مار دیتا ہے تو صبح چل کر جو اس کے قریب میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا الزام ڈال دیتا ہے کہ بھائی میرے وارث کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اور الزام دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے بھی اس وقت دیت وصول کی جاتی تھی، خون بہا جس کو کہتے ہیں، اس سے وصول کی جاتی تھی تاکہ اس کی وراثت بھی میں حاصل کروں اور ان لوگوں سے دیت بھی میں کیا کر لوں، حاصل کر لوں۔ چنانچہ پھر ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ قاتل کا جب پتہ نہ چلے تو آپ ایک جانور کو کیا کر لو، ذبح کر دو۔ جانور میں سے یہی، چاہے وہ گائے کے نام سے ہو یا بیل کے نام سے ہو، اس کو ذبح، بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم ذبح کرو، اور اس ذبح شدہ جانور کا کوئی بھی حصہ اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، وہ کھڑا ہو کر آپ کو قاتل کا پتہ دے گا۔ بعض نے کہا کہ اس کی دم لگاؤ، بعض نے کہا اس کی ران لگاؤ، خلاصہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کو لگانا تھا اور وہ کھڑا ہو کر قاتل کا نام بتاتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو وقت کے نبی نے یہی کہا، لیکن انہوں نے حجتیں اپنے اوپر ایک سختی پیش کی کہ اب بتائیے گائے تو ہم ذبح کریں گے، لیکن وہ گائے کیسی ہوگی، وہ بیل کیسا ہوگا۔ بہرحال اس کی حقیقت بتائی، پھر کہا کہ بھائی اب یہ تو ہے لیکن اب اس کا رنگ بتاؤ کیسا ہوگا۔ حجت کی،
रंग के बारे में भी कुरान ने बताया कि वो रंग कैसा होगा। फिर कहा कि भाई उसकी उम्र बताओ कितनी होगी, क्योंकि उनको ये कत्ल करना नहीं था इसलिए वो हुज्जतें कर रहे थे। बहरहाल उसकी उम्र भी बताई। आखिर में चलकर मजबूर होकर उन्होंने क्या उस जानवर को क्या किया, ज़बह किया। और ज़बह करने के बाद मकतूल जो है उसके बदन के साथ इसका एक हिस्सा लगाया और वो खड़ा होकर कहता है कि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा ही भतीजा है, और ये कह करके वो इंतकाल कर जाता है। तो इसका ये वाक़िया है, इस बकरा के नाम से ही इस सूरत को सूरह बकरा कहा गया है। इसी को मुफस्सिरीन ने लिखा है इस्मुल कुल बि इस्मिल जुज़, कि इस पूरी सूरत के एक हिस्से, एक वाक़े की वजह से इस पूरे सूरत का नाम ही क्या रखा, बकरा रखा है। अच्छा, इस सूरत की बहुत सारी फजीलतें हैं, हदीस के अंदर वारिद होती हैं, बहुत सारी फजीलतें इसकी हैं। बुखारी की एक रिवायत है, उसमें लिखा है, रिवायत बयान की है कि असीद बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एक मरतबा इस सूरह बकरा की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत करते करते उनके पास में उनका एक घोड़ा बंधा हुआ था। जब उन्होंने तिलावत शुरू की तो वो घोड़ा बिदकना शुरू हो गया, वो चिल्लाना शुरू हो गया, उधर उधर भागना शुरू किया उसने, लेकिन चूंकि वो बंधा हुआ था वो भाग नहीं सका। उसके बाद अचानक जब उन्होंने देखा कि घोड़ा बिदकना शुरू हो गया तो उन्होंने तिलावत रोक दी। जैसे ही तिलावत रोक देते और वो खामोश हो जाता, जैसे ही पढ़ना शुरू करते वो फिर बिदकता। 3 मरतबा ऐसा हुआ। और करीब में उनका एक बेटा जिनका नाम यहया है वो वहाँ सोया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये घोड़ा मेरे इस बच्चे को कुचल डाले, इसलिए उन्होंने तिलावत क्या कर दी, बंद कर दी। और सुबह को ये पूरा माजरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा कि ऐसा ऐसा हुआ। और वो तिलावत करने वाले वो फरमाते हैं कि अचानक मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो मैंने एक रोशनी, एक मशालें जलती हुई आसमान की तरफ देखी, और देखते देखते ही वो क्या है, आसमान की तरफ उठ गई। सुबह आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो आपने फरमाया कि जब आप तिलावत कर रहे थे वो आपकी तिलावत को और सूरह बकरा की तिलावत को सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से क्या है, उतरे थे। और अगर आप पढ़ते रहते सुबह तक तो ये सुबह तक फरिश्ते मौजूद रहते और सुबह को हर कोई इन फरिश्तों का दीदार कर लेते। लेकिन चूंकि आपने पढ़ना बंद कर दिया है, इसलिए वो क्या हो गए, आसमान की तरफ निकल गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इसकी तिलावत किया करो, इन्हें हुक्म दिया कि इसकी तिलावत करने का, ये बरकत से खाली नहीं है। और एक जगह लिखा है कि भाई जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए वहां जिन्नात शयातीन का असर बिल्कुल नहीं होगा। आज जो घर में बच्चे डरते हैं, कहते हैं कि इन पर किसने असर किया, किसी जिन्नात का असर किया। यही वजह है कि जिस घर में आदमी रहता नहीं है, मकान बना देते हैं, वहां कोई नहीं रहता है, घर को खाली नहीं रखना चाहिए, और वहां जिन्नात क्या है, अपना डेरा लगा देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर इस सूरह बकरा की तिलावत की जाए तो वो क्या है, वो उसकी तिलावत के बाद वहां किसी गलत जिन्नात का, किसी गलत शयातीन का असर नहीं होगा, और आपके तमाम उस घर के रहने वाले आदमी क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। और रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि इसकी फजीलतों में से, बरकतों में से एक बरकत ये है कि जिस भी बीमार के ऊपर इस सूरह बकरा को पढ़ करके उसको दम किया जाए या पानी पर दम किया जाए, उसको पिलाया जाए, वो शिफायाब होगा। तो उन्होंने फरमाया है कि जब कोई मरीज ऐसा हो, चाहे वो लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो या किसी और मर्ज में मुब्तला हो, एक मखसूस मिकदार में चावल लिया जाए और उसको पकाया जाए। पकाने के बाद उसको दही और शक्कर, खंड या उसके अंदर मिला करके वो उस पर दम करो और किसी मिस्कीन को खाने के लिए दे दो, तो वो जो मरीज है वो शिफायाब होगा। और खुसूसन लिखा है कि जिसको चीचक की बीमारी लग जाए उसके लिए यह मुजर्रब अमल है। ऐसे हर बीमारी के लिए यह मुजर्रब अमल है, क्योंकि बरकत ही बरकत है। लेकिन फरमाया कि जो चीचक का मर्ज है जिसके अंदर हो, उसके लिए मखसूस है कि उसको ये पढ़ करके ये चीज़ दे दी जाए, इंशाअल्लाह उसको क्या होगी, शिफा हासिल होगी। ये सूरह बकरा की क्या है, फजीलत है मुख्तसर तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह बकरा के शान नुज़ूल के मुतालिक लिखा है कि जब मक्का और उसके आसपास में इस्लाम का गलबा जाहिर होने लगा,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इस्लाम की दावत दी और इस्लाम फैलता गया तो मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सताना शुरू किया, तरह तरह के मजालिम आप पर ढाने शुरू किए। क्यों? इसलिए कि लोग इस्लाम के अंदर क्या है दाखिल होने लगे। उन्होंने इस्लाम से रोकने के लिए यह हरबा किया कि भाई किसी न किसी तरीके से इस्लाम से लोगों को रोकना है, लिहाजा जो इस्लाम ले आए हैं इन्हीं को आप सताना शुरू करो, ताकि दो काम हो जाएंगे, या तो ये काम बंद कर देंगे या यहाँ रहना ही छोड़ देंगे। चुनाचे कई अरसा ऐसे ही गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने तकालीफ उठाई, बर्दाश्त की। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाओ, मदीना जब ले गए, मदीना में चूंकि यहूद और नसारा वहाँ पहले से मौजूद थे और उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक गलत रसूमात और गलत चीज़ें क्या है अपने लोगों के अंदर शाये कर दी थी, जारी कर दी थी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो बीच में वक्फा था, नबियों का सिलसिला जो बंद हुआ था, ये तकरीबन 500 साढ़े 500 साल का वक्फा था। गलत रसूमात उनके मजहब के अंदर आई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम रसूमात से रोकते हुए उनको कहा कि भाई एक इस्लाम की तरफ आपको दावत देते हैं कि जिस इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को रोक लगाई है कि अब जब भी इबादत होगी तो एक अल्लाह की इबादत होगी। चुनाचे बजाय इसके कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्या करते, कबूल करते, आपकी इस पर अमल करते और आपका कलमा पढ़ते, मजीद आपको क्या करना किया, सताना शुरू किया, आपके सहाबा को सताना शुरू किया। और इस कुरान करीम के अंदर क्या है, शुकूक व शुबहात पेश किए कि यह कैसा कुरान है कि जिस कुरान को तुम लाए हो। और चूंकि उनको एक जिद ये भी थी कि इससे पहले जितने भी अंबिया नाजिल हुए थे वो बनी इसराइल में से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उनमें बनी इसराइल में से नहीं है, लिहाजा इनका खानदान कुरैश खानदान है। तो ये इस जिद की वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम नहीं किया। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल मुसलसल उनको दावत देते रहे, लेकिन शुकूक व शुबहात वो डालते रहे कि इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है। क्यों? वो तो फसीह व बलीग थे, वो तो अरबी जानते थे, लिहाजा उन्होंने कहा इस जैसा कलाम तो हम भी खुद ला रहे हैं, हम भी पेश कर सकते हैं। जिसको कुरान ने फिर आगे चैलेंज करते हुए उनको कहा कि भाई आप इस जैसा कलाम अगर तुम पढ़े लिखे हो तो ला सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सूरत नाजिल फरमाई, ये उनके उन शुकूक व शुबहात का रद्द करने के लिए, जो कुरान के मुतल्लिक़ वो शुकूक व शुबहात पेश करते थे, हम इस कुरान को तब तक नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास इसके लिए क्या है, कुछ शुकूक हैं, कुछ शुबहात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया और इब्तिदा के अंदर ही अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब शुरू में अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है। हुरूफ़े मुक़त्तआत के मुतालिक तो सीधा साधा हुक्म ये है कि ये मानना है, इसकी खोज और तलाश करनी नहीं है कि ये क्या है। इसके माने लिखा है, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि इसका मफ़हूम, इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फिर बाज़ ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं था। उनके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इसका इल्म नहीं है। लेकिन मुहक्किकीन ने इस राय को तरदीद कर दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म न हो, इस बात को तस्लीम किया नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान मुक़द्दस के अव्वल मुखातब कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अव्वल मुखातब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इल्म न जानते, इसका मतलब न जानते, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि जिसके साथ बात की जाए जब वो बात को समझे ही नहीं तो उससे बात पेश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ करती है। इसलिए मुफस्सिरीन ने इसकी रद्द की है। फिर इस बाज़ ने इसका माना भी लिखा है कि भाई अलिफ लाम मीम का माना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं ही अल्लाह हूँ। इसका माना मैं अल्लाह हूं और मैं सबसे आला हूं, सबसे आला हूं। और बाज़ ने इसका माना यह जिक्र किया क्योंकि इसका तो दो जमातें हुई हैं। एक जमात ने कहा कि भाई इसका माना तो किसी को मालूम था ही नहीं, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि भाई
इसका माना किसी को मालूम नहीं है, लिहाजा लोगों के सामने भी बयान करने की जरूरत नहीं है। और बात फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों के सामने इसका इल्म बयान कर, इसकी तफसीर बयान करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो जिन बाज ने कहा कि इस माना बयान किया है कि अलिफ लाम मीम, जो अलिफ है उसके माने हैं अल्लाह, और जो लाम है उसके माने हैं जिब्रील, और मीम जो है उसके माने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुलासा ये निकाला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान करीम को हजरत जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या है पहुंचाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को क्या है अपने उम्मती तक, हर उम्मती तक ये कुरान क्या है पहुंचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम, तो मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह और रसूलुहु आलमु बिमुरादी, अल्लाह और उसका रसूल ही इसकी मुराद से क्या है वाकिफ है। हमें हुक्म है कि इसको मानना है, आमन्ना व सद्दकना। इसकी तफसील, इसका माना क्या है, उसमें पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये मुशरिकीन मक्का जिस कुरान के मुतालिक शुकूक व शुबहात पेश करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये बंदे का कलाम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कलाम को बना करके हमें पागल बनाने के लिए, हमें बेवकूफ़ समझने के लिए क्या है इस कुरान को हमारे सामने क्या किया है, पेश किया है। तो अल्लाह ने फरमाया, इसकी तरदीद की कि भाई ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये किसी बंदे का बनाया हुआ नहीं है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हुक्म दिया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीही, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जिसके पास भी ये कुरान ये पहुंचे, ये कुरान की दावत पहुंचे, उसको मानना क्या है जरूरी और वाजिब हो जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने फरमाया ये हिदायत देता है किसको, तकवे वाले को, मुत्तकीन को। ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हिदायत के माने हैं राह रास्त दिखलाना, सही बात बतलाना, सही रास्ता दिखलाना, गलत रास्तों से हटाकर उस रास्ते पर चलाने की तरगीब देना जिस रास्ते पर चलकर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है खुश और राजी होते हैं, उस रास्ते को कहते हैं राह रास्त। अच्छा, मुत्तकीन, तकवा मुत्तकी किसको कहते हैं? लिखा है कि मुत्तकी के माने परहेजगार, और इस मुत्तकी के पास तकवे की सिफत तब तक रहती है, इसका तर्जुमा साफ लिखा है, जो हराम चीज़ों से बचे, जो मुश्तबह चीज़ों से बचे, उसको मुत्तकी कहते हैं। लेकिन बाज़ ने लिखा है कि मुत्तकी के साथ तकवा उस वक़्त तक बाकी रहता है जब तक वो हलाल चीज़ हराम चीज़ से बचते हुए बाज़ हलाल चीज़ से भी अपने आप को पीछे रखे। हराम से तो बचना ही बचना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हलाल भी हैं जो उसकी शायान शान नहीं है, जो उसके खिलाफ है, उसके वक़ार के खिलाफ है, उन चीज़ों से भी अपने आप को रोकना, इसको मुत्तकी कहा जाता है। तो इन लोगों को पता चला कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, ये कुरान हिदायत का सबब उसी के लिए बनेगा। जो इस कुरान को मानता ही नहीं है, जिसको अल्लाह का खौफ है ही नहीं, ये कुरान चाहे उसके साथ हर वक्त लगा रहे, तो उसके साथ अब तिलावत करते रहो, उसको ये राह रास्त पर नहीं ला सकता है। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फीही, जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब मुत्तकीन की सिफत को बयान कर रहे हैं। मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं गैब की बातों पर, व युकीमून अस्सलाह, और कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है। ईमान बिल गैब, बिन देखे किसी चीज़ को मानना। एक मौके पर एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा थे। ये ईमान बिल गैब पर बात याद आई। साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वुजू के लिए ज़रूरत पड़ी, लेकिन पानी किसी के पास मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, भाई पानी तलाश करो। तलाश करते करते कहीं पानी मिला नहीं, एक साहबी के पास एक प्याला पानी का मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस प्याले के पानी में क्या है डाल दी, और उससे क्या है पानी जारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस्तेमाल किया साहबा को, और ऐलान फरमाया कि जितने भी साहबा है सबको कहो कि जिसको वुजू करना है वुजू करो, जिसने क्या करना है पानी पीना है वो पानी पी सकते हो, और पानी क्या है हर एक के लिए क्या है काफ़ी हो गया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से सवाल फरमाया कि बताओ हम तुम में से सबसे बेहतर ईमान किसका है, सबसे बेहतर ईमान किसका है? आप सहाबाए किराम ने आपको जवाब दिया कि फरिश्तों के ईमान सबसे बेहतर है, क्योंकि सबसे अफजल मखलूकात क्या है, वो जो
नूरानी मखलूक है, गुनाह करने का उनके अंदर कोई मादा नहीं है, तो फरमाया कि फरिश्तों की मखलूक सबसे बेहतर है। आपने फरमाया कि उनका कोई कमाल है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके पास गलत करने का मादा ही नहीं है, वो गलत करते ही नहीं है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, जिसका हुक्म दिया वही करते हैं, गलत करते नहीं है। लिहाजा क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूर से पैदा किया है, लिहाजा उनका तो कमाल नहीं है। फिर सहाबाए किराम ने कहा, फिर हमारा अपने मुताल्लिक कहा, फिर हमारा ईमान सबसे बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके ईमान में भी कोई कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने मेरी जात को देखा है, मेरी नबूवत को आपने देखा और मुझसे मौजज़ात निकलते हुए देखे, और अभी ये मौजज़ा देखा कि पानी का एक प्याला था, मैंने उंगलियां इसमें डाली और इससे पानी इतनी मिकदार में निकला, लिहाजा आपका ईमान ये भी, इसमें आपका भी कोई कमाल नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आपके बाद एक ऐसी उम्मत आएगी जिस उम्मत ने मुझे नहीं देखा होगा और जिस उम्मत ने मेरे मौजज़ात को होते हुए नहीं देखा है, सिर्फ सुना होगा, और वो सुनकर ही मेरे ऊपर ईमान ले आएंगे, मेरे तमाम मौजज़ात पर ईमान लाएंगे, वो उनका ईमान सबसे बेहतर होगा। उसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। और ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जिन्होंने सिर्फ सुना और तस्दीक की, आपने फरमाया कि उनका ईमान क्या होगा? सबसे बेहतर होगा। तो मुत्तकीन कौन है? वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं बिन देखे, वयुकीमूनस्सलाह, और क्या करते हैं? नमाजों को कायम करते। एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना जिसे हम पढ़ते हैं जिम्मेदारी को खत्म करते हुए, इसको नमाज नहीं कहते हैं। नमाज कायम करना उसके सुनन, उसके मुस्तहब्बात का की रियायत करते हुए, उसके वाजिबात की रियायत करते हुए, उसके फराइज की रियायत करते हुए। वरना हम जो नमाज पढ़ते हैं, रुकू किया, अभी रुकू से उठे नहीं, सजदे में चले गए, एक सजदा किया, विशासन आते थी, हम उठ गए, ऐसी नमाज को कायम करना कहते नहीं है। यह हुआ अपने सर से बोझ उतारना। और ऐसी नमाज के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आपके सामने नमाज पढ़ रहे थे, जब देखा आपने ऐसी नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, आप चले जाओ, दोबारा नमाज पढ़ो, इसलिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी है। इसलिए नमाज पढ़नी है तो कैसे? सीख करके पढ़नी है और सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसको अल्लाह के रास्ते में क्या करते हैं? खर्च करते हैं। हम जो भी देते हैं इस नीयत से देना चाहिए, हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने हमें दिया है और उसी के रास्ते में खर्च करना है। कल क़यामत के दिन यही माल हमारे लिए क्या होगा? नजात का सबब बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।